So this is the in the last lecture we have discussed the file handling. Okay, and we have discussed why we are using file handling in Python. So the advantage why it is required. ठीक है, because जो हम लोग डेटा लिखते हैं we store data using the program, so that is stored in the random access memory that is volatile. So we use non-volatile memory that is hard disk. So we use file handling. Okay. So in the last class we have discussed these things in the detail. Okay. And now, Sir, can you give us a short revision like what you did in the last class? ठीक. See. So in the last class we discussed file handling in Python. Okay. So first we discussed what is the advantage of learning file handling. First thing, so see, file are the named location. Okay, so they are used for permanently store our data, permanently storing our data. See, currently if you are writing any program, if you running that program, you have the output. Now when once you switch off your laptop, your output will stay still available, or it will vanish. आउटपुट विल वेनिश. ठीक है, अगर आप इफ यू स्विच ऑफ द लैपटॉप एंड देन अगेन स्विच ऑन, देन यू अगेन नीड टू रीरन योर कोड. ठीक है, सो दैट मीन्स आवर आउटपुट इज नॉट स्टोरिंग इन एनी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, सो यूजिंग द फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम CSV दैट यू लर्न इन योर 11th और 12th आई थिंक. ठीक है, वो CSV वाला कंसेप्ट आएगा व्हेन वी लर्न पांडास. ठीक है, डेटा फ्रेम. तो अभी क्या है, सिंपल फाइल हैंडलिंग दैट इज टेक्स्ट फाइल. जो हमारा टेक्स्ट फाइल होता है ना नोटपैड में, व्हेनेवर यू यूज, और उबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं gedit यूज करता हूँ. ठीक है, तो टेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट फाइल और बाइनरी एग्जीक्यूटिव फाइल. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट CSV फाइल जो कि आपने 12th में पढ़ा है यूजिंग पांडास और डेटा फ्रेम. ठीक है, इनका एडवांटेज क्या है, बिकॉज वी वांट टू स्टोर आवर रिजल्ट, वी वांट टू स्टोर आवर डेटा इन अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. आपने आई थिंक इन द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यू विल लर्न व्हाट इज वॉलेटाइल, व्हाट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. दैट इज परमानेंट हार्ड डिस्क. Sir, आपको पता होगा ना. we'll not do CSV, we'll do text file. हाँ हाँ, हम लोग टेक्स्ट फाइल कर रहे हैं. सॉरी, प्लीज रिपीट. Sir, I was asking that we will not do CSV, right? Then we will do text file only. But some things are similar, I guess. CSV we will do, but before that we have a topic of file handling. ठीक है, और CSV will come when we learn the packages, pandas package. Sir, ठीक है, Pandas आपका is in the first semester itself. मैं फर्स्ट सेमेस्टर ही की बात कर रहा हूँ. जस्ट a minute, I will show you here. See. Sir, can you please share this course on the chat box if you can? Okay, I think आप you might have this. अगर नहीं है then I will share. ठीक है, see, this is your module 1. ठीक है, we have covered all these things. This is module 2. ठीक है, in this module we have a topic file handling operation, reading and writing text file. देखिए आप, text files. ठीक है, and in the third module also it is written a file introduction. So we are discussing this topic. ठीक है, we are discussing this topic. ठीक है, जो pandas वाला part है ना, dictionary, class, object. So I this might be in this package we can discuss, but specifically specify नहीं है where we need to discuss this. ठीक है, so जो pandas वाला होगा आपका जो CSV file, that comes when we learn matplot package, pandas package, series, frame, data frame. ठीक है, then we need to discuss that. और आप, और in your syllabus you have a project also. ठीक है, it is compulsory lab object. So you, all of you are requested to start working on any project according to your choice. ठीक है, or you can discuss project with me. ठीक है, in the lab.
ठीक है. So हम लोग here a topic, so we are discussing this topic, file handling operation, reading and writing text file. ठीक है. अब clear है topic? Yes, sir. ठीक है. Syllabus, if you are not having syllabus, I will share you. ठीक है. This is Python syllabus. ठीक है. So I will share you. This is your syllabus here. ठीक है. This is your syllabus. So I will WhatsApp you to the BR, one BR from the batch 1 and one BR from the batch 2. ठीक है. Yes, sir. And I will. ठीक. Okay, so this is the topic. अब clear है ना? ठीक है. So last class में we have discussed why we are using file. ठीक है. Because the random access memory. I know I think in your system you have you have a RAM also. You have hard disks also. I think you are aware with this. Am I right? ठीक है. So जो random access memory होती है, the random access memory is volatile. ठीक है. So that means your data will be lost whenever you turn off your computer. ठीक है. So if you want to permanently store your data, we will use we need to store our data in a hard disk. ठीक है. So hard disk is a non-volatile memory. Non-volatile. ठीक है. So there are three things in file handling. First one is opening a file. ठीक है. After that, reading or writing anything whatever you want. After that, closing the file. There are three things. ठीक है. In the Python, if you want to open a text file or a executable file, that we will discuss. So suppose if you want to open a file, you need to use this function, open. ठीक है. Bracket open, bracket close, and in this bracket the file name. ठीक है. Last time we have discussed using the programming. So again I can show you. I'm opening my Jupyter notebook, so I will show you using the program also. Okay, so this is uploading. Yeah. Okay, this is visible. Yes, sir. Okay. So okay. So last time we discussed this. So last time we opened this file. F equals to open the file name test.txt. ठीक है. There are if you remember from the previous class. ठीक है. So in which mode this file will be opened from the previous class? There are mode, read mode, write mode. Do you remember? Read and write. Yes, sir. ठीक है. तो by default which mode is this? Sir, read mode. Yeah, by default it is read mode. ठीक है. Read mode में क्या होगा? If the file is if the file is available in your current working directory. ठीक है. If the file is available in the current working directory, तो वो file क्या होगा? The file will be opened in a read mode. अगर file is not available in the current working directory, तब क्या होगा? What will happen? You can't open the file. ठीक है. अब देखो मैं शो करता हूँ. ये this file is visible. Test.txt in my directory. Visible है ना? ठीक है. This file is available, so I can use this command. So I am running this command. ठीक है. ये command work कर रहा है ना? Now you can run and check. This is a file. आपने कौन सी file open की है? Test.txt. Which mode? Default it is reading mode. ठीक है. So we are opening a file test.txt in which mode?
By default it is R, means reading mode. So you cannot write anything in this file, you can only read the data from this file. Okay, I will discuss what is this, okay, in my lecture. Okay, suppose if you write here another file name, okay, if this file is not available in my directory, then what will happen? What output we will have? Please answer. Sir, error. Error. हाँ, error message, no such file or directory. ठीक है, क्योंकि फाइल इज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, सो ये क्लियर है ना आपको? सो वी आर ओपनिंग दिस फाइल. ठीक है, इफ इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, मैंने आई हैव written all these things in a notes. ठीक है, ठीक है. if you are writing here w, if you are writing here w इस तरह से, then the we are opening a file in the write mode. Which mode? Writing mode. ठीक है. Now what is the difference between reading mode and writing mode? What is the difference? In the first difference is that in the reading mode, if the file is available, then you can only use that command. ठीक है, open bracket file name. ठीक है. If the file is not available, then you will have a error message. But write mode में क्या होगा? Write mode में क्या होगा? If the file is not available, if the file is not available, then क्या होगा? एक empty file create हो जाएगी. What will happen? An empty file will be created. And second case, अगर file already present है तो, and अगर file is already present, then what will happen? Sir, it will delete all the data from. Yes, it will delete all the data. ठीक है, तो फाइल क्या होगा? वो पुरानी फाइल समझ लो डिलीट हो जाएगी, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी which is an empty file. ठीक है, so we have discussed these things last time. ठीक है. Now if you want to create or if you want to open file from another location, जैसे कि suppose my program is stored in my, I'm using my Jupyter notebook from D drive. ठीक है, और suppose आपकी फाइल है C drive में. So if you want to use another location, तो आप क्या करना? You just need to specify the path. ठीक है, full path. ये क्लियर है ना? ये सब लास्ट लेक्चर्स है, ये सब एवरीथिंग. ठीक है. अगेन अगर आप विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो पाथ विल बी लाइक दिस, C:/ फोल्डर नेम, अगेन फोल्डर नेम. ठीक है. और अगर Ubuntu बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं जस्ट लाइक मी, तो ये पाथ इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो इट इज जस्ट अ पाथ हियर, नथिंग एल्स. ठीक है. सो वी कैन स्पेसिफाई द मोड व्हाइल ओपनिंग अ फाइल. ठीक है, ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया था लास्ट टाइम. ठीक है, मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ. सो वी कैन स्पेसिफाई द मोड व्हाइल ओपनिंग अ फाइल. ठीक है, वी कैन स्पेसिफाई रीड मोड. रीड मोड में क्या होगा? वी जस्ट नीड टू राइट हियर R. राइट मोड में वी नीड टू राइट W and append we need to write A. I will discuss what is A. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना आपको? And we can also specify if we want to open a file in text mode or binary mode. ठीक है, तो there are two type of file, text file and binary file. But in your syllabus it is text file, so we are discussing text. और by default क्या होगा? By default it is a text file. By default it is a text file. ठीक है, तो ये क्लियर है ना यहाँ तक? Yes or no? Yes, sir. ठीक है, या ये टेबल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज बी पेशेंस हियर. ठीक है. सो व्हाट इज द कमांड टू ओपन अ फाइल? You just need to write here any variable name here. You f I am using open. ठीक है, इसके बाद what you need to write here? Path, full path. ठीक है, full path. ठीक है. अगर if your file is in the current directory, you just need to write the file name. ठीक है. If it is in another directory, you need to write the whole path. जैसे कि है ohome/rohit/bu/ कुछ भी जो भी मेरे में डायरेक्टरी हो, सपोज दिस.
ठीक है. So you need to write the whole path if it is not in the current working directory. If it is in the current working directory, you just need to write the file name. ठीक है. After that, comma करके क्या लिखेंगे हम? Either we will write here read R, or we will write here W for write, or we will write here A for append. ठीक है. So this is mod. This is called mod. ठीक है. So I am just writing here this. ठीक है. और you can write here W for writing purpose. ठीक है. तो second thing समझ में आया ना यहाँ पे, ये जो mod है, these are read, write, X, A and T, B plus, ये सारी चीजें हैं. ठीक है. So first we are discussing R. R means क्या होगा? Open a file for reading. Open a file for reading. It is a default mode. ठीक है. और it will work only when the file is available. ठीक है. It will work when the file is available. ठीक है. ये clear है? Yes or no? ठीक है. सेकंड देखो, सेकंड क्या है? राइट मोड. राइट मोड में ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग. ठीक है. क्लियर. It will create a new file if it does not exist. It will create a new file if it does not exist. ठीक है. अगर फाइल एग्जिस्ट करती है then it will truncate the file. Truncate मतलब उसको डिलीट कर देगा and then एक new empty file will be created. ठीक है. ये क्लियर है राइट मोड? यस और नो? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्स. एक्स मींस क्या होगा? ओपन अ फाइल फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन. एक्सक्लूसिव क्रिएशन मतलब क्या होगा? इफ द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट तो क्या होगा? कमांड फेल हो जाएगा. इफ द फाइल इज नॉट एग्जिस्ट देन इट विल वर्क. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन W एंड X? W एंड X में क्या डिफरेंस है? इन द W अगर फाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट देन इट विल ट्रंकेट द फाइल एंड विल वर्क. मतलब कि ओल्ड फाइल डिलीट हो जाएगी एंड न्यू फाइल क्रिएट होगी. बट X में क्या है? इफ द फाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट तो दिस कमांड विल फेल. दिस कमांड विल वर्क ओनली व्हेन द फाइल इज नॉट अवेलेबल. व्हेन द फाइल इज नॉट अवेलेबल. तो क्लियर है ना डिफरेंस? डिफरेंस क्लियर है ना? यस. ठीक है ना? ठीक है. दिस इज द डिफरेंस. हाँ बोलिए सर. हम एक्स को यूज क्यों करते हैं वैसे? एक्स को यूज क्यों करते हैं सर हम बताते रहे. जैसे देखिए सपोज यू वांट टू क्रिएट अ फाइल व्हिच इज नॉट अवेलेबल. इफ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल व्हिच इज नॉट अवेलेबल मतलब कि you do not want to delete your existing file. जैसे कि सपोज मैंने कमांड में लिख दिया test.txt एंड इफ इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट और मैंने W यूज किया तो व्हाट विल हैपन? तो जो test.txt का सारा डेटा तो डिलीट हो जाएगा. यस और नो? यस सर. ठीक है. बट अगर हम इफ वी विल यूज X तो फाइल क्रिएट ही नहीं होगी. इट विल टेल यू द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो जो एग्जिस्टिंग फाइल है ना, एग्जिस्टिंग फाइल विल कीप will stay in your laptop, in your machine. मतलब existing file delete नहीं होंगी. So the file will be created only when the file is not available. अगर file available है then it will fail. ठीक है. यस सर. ठीक है. नेक्स्ट है A. ठीक है. ये what डिफरेंस है क्योंकि your program will depend in which mode you are opening a file. ठीक है. If you want to just read the data, R. If you want to write the data, W. But W में क्या है? एग्जिस्टिंग फाइल का डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा. X का एडवांटेज क्या है? फाइल अगर नहीं है, if the file is not present, then this will be used. ठीक है. You will only use when you want to exclusively create a file. Exclusively create a file. ठीक है. A means क्या है? Open a file for appending at the end of the file without truncating.
मतलब इसको ट्रंकेट भी नहीं करेगा, फाइल को ओपन भी करेगा। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओपनिंग? एट द एंड ऑफ द फाइल इफ यू वांट टू अपेंड समथिंग, इफ यू वांट टू अपेंड समथिंग। ठीक है, क्लियर है ना? अब मैं इनके एग्जाम्पल करके दिखाऊं, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो देखो हम इसको एक्सक्लूड कर दे रहे हैं इसको, ये जस्ट फॉर यू। ठीक है, इस फाइल को वी आर रीडिंग दिस फाइल। ठीक है, इसको रीड करते हैं, इसको जस्ट, अब देखिए f डॉट रीड, अब देखिए f डॉट, दिस इज माय फाइल, इसमें तो कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, कुछ भी नहीं है। देन इफ यू विल डू f डॉट रीड, if you will do f dot read this, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा ना? yes or no? यस सर। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ लिख दूं ओपन करके, इसको क्लोज करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, फिर से इसको रीड करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके फिर से रीड करना पड़ेगा। फिर से रीड किया, अब इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा और फिर रीड। अब देखो इसको रीड करते हैं, देखो अब ये क्या दे रहा है, इट इज गिविंग मी द 5 कैरेक्टर। ठीक है, फिर से मैं रीड करूंगा तो सेम आउटपुट आएगा या डिफरेंट? ये सब कुछ प्रीवियस लेक्चर से है अभी। सर डिफरेंट आउटपुट आएगा। डिफरेंट आउटपुट, क्योंकि 5 कैरेक्टर वी हैव ऑलरेडी रेड 5 कैरेक्टर, तो उसके नेक्स्ट 5 कैरेक्टर यू विल रीड। ठीक है, अगेन करेंगे तो नेक्स्ट 5 कैरेक्टर रीड होंगे। 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके बाद में क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर है। ठीक है ना, यू के बाद क्या होगा, न्यू लाइन कैरेक्टर, तो दैट विल बी काउंटेड। ठीक है, सो यू, फिर न्यू लाइन कैरेक्टर, फिर सी, फिर एन, फिर ओ, 5 कैरेक्टर। अगर आप कुछ भी पास नहीं करते हैं देन रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर विल बी। ठीक है, ओके, तो दिस इज योर फाइल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, नाउ वी आर ओपनिंग अ फाइल इन द राइट मोड, यहाँ पे। ठीक है ना, पहले हम देखते हैं ये फाइल इज अवेलेबल इन माय डायरेक्टरी और नॉट। टेस्ट अंडरस्कोर रोहित डॉट टीएक्सटी, टेस्ट अंडरस्कोर रोहित डॉट, yeah, you can see this file is available here, visible, test underscore rohit dot txt। इसके अंदर डेटा देखते हैं क्या है, कोई भी डेटा नहीं है इसमें, कुछ डेटा लिख देते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करें राइट मोड में, यस और नो? यस सर। ठीक है, इसको ओपन करते हैं राइट मोड में। ठीक है, अब डेटा देखें क्या है, डेटा इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। क्यों? What is the reason here? Sir, because write mode truncates all the data. हाँ, राइट मोड ट्रंकेट्स ऑल द डेटा। ठीक है, तो हमने राइट मोड यूज किया था तो एग्जिस्टिंग डेटा डिलीट हो गया एंड वी हैव अ न्यू फ्रेश फाइल। ठीक है, अगेन हम टेस्ट डॉट टीएक्सटी यूज करते हैं तो उसका डेटा भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो क्लियर है। नाउ वी आर यूजिंग दिस कमांड टेस्ट डॉट टीएक्सटी कॉमा एक्स। नाउ व्हाट आउटपुट इट विल गिव, test.txt अगर पहले से if text.txt is already available तो क्या होगा, it will give me error। देखो फाइल exist पहले से है,
ठीक है. Now I'm using this command, this फाइल ऑलरेडी है. ठीक है. अब मैं इसको देखो डिलीट कर देता हूँ. ये फाइल थी ना test1.txt, दिस. ठीक है. इसको डिलीट कर दें. इसको डिलीट कर दिया. नाउ फिर से रन करते हैं कमांड को. देखो अब ये काम कर गया कमांड. नाउ इट इज वर्किंग. ठीक है. और देखो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी. ये डिलीट किया था हमने, फाइल क्रिएट हो गई. क्लियर है ना. तो रीड RWX, these three are clear. यस सर. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट वी आर यूजिंग test3.txt, A. ठीक है. अब देखिए ये फाइल पहले से है या नहीं. आप यहाँ पर भी देख सकते हैं. यहाँ पर भी देख सकते हैं क्योंकि मैंने इसी लोकेशन test3.txt ये ऑलरेडी है. ठीक है. तो ये ऑलरेडी है. अब देखो इसको, ये काम करेगा. अब मैं यहाँ पे test4.txt कर रहा हूँ. ये काम करेगा या नहीं. It will work or not. देखो, open a file for appending at the end of the file without truncating. ठीक है. अगर फाइल पहले से है उसको ओपन करेगा. और what is the purpose? Appending at the end of the file. अगर फाइल पहले से नहीं है तो it will create a new file. It will create a new file. तो if we are using test4.txt, फाइल अगर पहले से नहीं है तो it will create a new file. तो अब देखिए, देखो इसने तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर दी है. विजिबल. यस और नो. यस सर. ठीक है. तो अभी तक हमने सिर्फ अभी वी आर डिस्कसिंग द मॉड ऑफ रीडिंग, रीड राइट WXA. ठीक है. ठीक है. अब ये रीड क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे. व्हाई इट इज गिविंग मी एरर. अभी we have used f equals to open test4.txt, A. Now I am using f.read. Why it is giving me error. Why it is giving me error. Please answer. Yes, Abhay Shukla, why it is giving me error. Dibyanshi. Can you show me? Sorry. Can you show the error part? ये ना error. Not readable because क्या है. We are opening the file in the append mode. This append mode. ठीक है. We are opening the file in the append mode and we are using read method. That's why it is giving me error, not readable. ठीक है. अगर इसको error को remove करना है then you need to use this. यहाँ पे R use करना होगा आपको. ठीक है. And then you can use this. But अभी इसमें कोई डेटा नहीं है तो you can't see. Now you can use this. ठीक है ना. ठीक है. So we have discussed these 4 mods. ठीक है. और ये सब previous class से था. Now see. ठीक है. Next is T. ठीक है. So open in a text mode. ठीक है. अभी मैंने था ना, there are 2 types of file. First one is the text file and second one is the binary file. ठीक है. बट आपके कोर्स में क्या है, only the text file. और by default क्या है, by default it is a text file. ठीक है. So we no need to use this T when we are we want to create a text file or we want to write or we want to append something in a text file. ठीक है. So the default is a
text mode. ठीक है. Now B is for binary mode and we are not discussing binary mode in your syllabus. ठीक है, ये क्लियर है ना, T और B. ठीक है. Now one last thing, that is plus sign. Plus sign का मतलब क्या होगा? It will open a file for updating. It will open a file for updating. Bracket में reading and writing. ठीक है. It is used with one of the read write append mode. तो जो आपके ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया ना, रीड राइट अपेंड मोड, उनके साथ हम प्लस साइन का यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज प्लस साइन विद दैम. ठीक है, ये क्लियर है? इसको एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूं. ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल देखिए आप. f equals to open test.txt file and in this bracket r plus. ठीक है, इसको जब हम जस्ट रन करते हैं यहाँ पर, फिर हम चेक करते हैं. वो देखो, ये क्या है, फाइल का नेम क्या है, test.txt. व्हाट इज द मोड, r+1. ठीक है. इसमें क्या बोला उन्होंने, करेक्टर लाइन बेस्ड इनकोडिंग, डिटर्मिनिस्टिक, न्यू लाइन आउटपुट इफ द न्यू लाइन, नहीं कुछ डिटेल में नहीं है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इसमें रीड करते हैं, प्रिंट f.read. सो इट विल, हाउ मेनी कैरेक्टर्स इट विल रीड. अगर मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूं इन द ब्रैकेट, हाउ मेनी कैरेक्टर, it will read the entire file. It will read the entire file. इस फाइल में कुछ भी नहीं है, आई थिंक. ओके, इसको क्लोज कर दिया. ठीक है, इसको फिर से रीड किया. देखो, it will read the entire file. ठीक है. अब देखिए, ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? ये टेबल क्लियर है ना, दिस टेबल? हेलो, यस सर. Yes, ठीक है. sir. यस सर. हाँ, ये टेबल क्लियर है ना. अब टेबल तो जस्ट हमने यहाँ तक लास्ट लेक्चर में भी एक्चुअली यहाँ तक कर लिया था. बेसिकली लेक्चर हमें यहाँ से स्टार्ट करना था. ठीक है, मैंने कहा टी इज ऑप्शनल. टी बताता है इट इज एन टेक्स्ट फाइल एंड इट इज एन ऑप्शनल. ठीक है, तो हम आइदर हम आर लिखें और आर टी लिखें, डब्ल्यू लिखें और डब्ल्यू टी लिखें, बोथ आर सेम. ठीक है. ठीक है, देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है डब्ल्यू, बट आई एम जस्ट गिव यू एन आइडिया. ठीक है. सो f इक्वल्स टू ओपन, दिस इज एन फाइल नेम imp.bmp r+b. इसका मतलब क्या होगा, r मीन्स रीड, एंड प्लस साइन का पर्पस क्या है, इट विल यूज प्लस साइन विद रीड राइट अपेंड मोड फॉर अपडेटिंग, रीड और राइट दोनों के लिए. ठीक है, वी विल डिस्कस विद एन एग्जाम्पल. सो प्लस का मतलब क्या है, इट इज फॉर अपडेटिंग. सो वी आर ओपनिंग अ फाइल इन r+ मोड. r मीन्स रीडिंग, प्लस मीन्स रीड विद अपडेट, और b मीन्स बाइनरी आपके सिलेबस में नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको. ठीक है. सो व्हाट इज द, अगर कोई, इफ समवन आस्क यू व्हाट डज इट मीन्स, यू आर ओपनिंग अ फाइल, ठीक है, इन r+ मोड एंड इट इज एन बाइनरी फाइल. जैसे कि आपकी इमेज होगी, और इट कैन बी एनी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि आप यू कांट सी के, बस ये दैट आर एप्लीकेशंस फाइल्स होती हैं आपकी. ठीक है. सो दिस, अनलाइक अदर लैंग्वेज, द कैरेक्टर डज नॉट इम्प्लाई. ठीक है, ये थोड़ा डेप्थ में है, देखो मैं बताता हूँ. सी, if you are using window operating system, अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन है, any one of you can use this command in your system right now?
So I can see whether I need to discuss this topic or not in coding, क्योंकि I am using Linux based operating system and you are using Windows based operating system. So I want to confirm whether all the things are similar in your laptop or not. So anyone can please run any command, कोई भी, any one of you? Okay, I need to specify any name then. Okay, Archita Dobe. Archita Dobe, are you there? Okay, so those who are not responding, I need to note down their name. Okay. So for the final grading, so there are marks for your class performance also. Okay. Class may respond, are you responding in the class or not? So I need to note down the name. Those who are not responding, they are just log in and they are not physical, they are not mentally present. Okay. The Dharsil Ignale, are you there? No. Yes, sir. Dharsil. Okay, can you please share your screen? Can you use Jupyter Notebook or Python terminal? Sir, I'm attending from my phone. Just a second. तो अगर फोन से अटेंड कर रहे हैं then how can you practice with me? पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा फिर प्रोग्रामिंग क्लास का. ठीक है, कुणाल माटा. Yes, sir. ठीक है, can you open Jupyter Notebook? Just Or a you are also okay? I'm giving you the permission. ठीक है. Okay, so create any file using the write command. Create any file using the write command. F equals to open, yes, bracket, no, ठीक है, bracket. Can you Sir, dictate it's not compulsory that we have to use Jupyter Notebook, right? नहीं, it is not compulsory. Like we can use PyCharm and Yeah, all. you can use your terminal, you can use anything, whatever you have. Okay, ठीक sir. है. Thanks. Yeah. Yes. hey.txt. इसका एक्सटेंशन से दो फाइल का, व्हाट इज द एक्सटेंशन? ठीक है, कॉमा. भाई ब्रैकेट के अंदर कॉमा आएगा या बाद में? आप लोग क्लास में हो भी कि नहीं? इन द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इन द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा के बाद यस, राइट आर, राइट आर, राइट आर. जस्ट a minute, stop here, stop here, stop here. Now Mike Rawat, what will be the output? सर अगर ये फाइल होगी तो उसे रीड कर लेगा, अगर नहीं होगी तो फिर एरर आएगा. हाँ ठीक है, इसको रन कीजिए. ओके, फाइल इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, इस फाइल को कैसे क्रिएट करोगे कुणाल? हाउ विल यू क्रिएट दिस फाइल? फाइल इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, क्रिएट करो इसको. सेम कमांड लिखो, आर की जगह क्या कर दो, डब्ल्यू. आर की जगह डब्ल्यू कर दो. done, sir. ठीक है, अभी तो इसमें लेकिन बट कंटेंट कुछ भी नहीं है. एंड आई विल टेल यू हाउ टू राइट. ठीक है, अब इसको क्या करो, इसको मैनुअली इस फाइल को ओपन करके कुछ इसमें लिख दो, या इफ यू वांट टू राइट फ्रॉम पाइथन कोड, मैं वो बताऊं. पाइथन कोड से लिखना है क्या? हाँ सर. ठीक है, और जुपिटर नोटबुक पे जाइए फिर से. देखो एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट, जैसे रीड किया था वैसे राइट लिखो. WRI होता है ना राइट, तो
या ब्रैकेट ओपन, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज, इसके अंदर कुछ भी लिख दो जो लिखना हो, अपना नाम लिख दो, हाँ ठीक है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी, ठीक है, ठीक है, ओके, बैकस्लैश एन लगाओ, बैकस्लैश एन, कुणाल माटा के बाद में बैकस्लैश एन, ठीक है, बैकस्लैश एन, कुणाल माटा के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, बैकस्लैश एन भी तो लिखो, एन, बैकस्लैश एन, क्या हो गया, हाँ, उसके बाद कुछ और लिखो, कुछ भी लिखो उसके बाद, बैकस्लैश एन के बाद, जस्ट बैकस्लैश एन के बाद स्पेस दे दो एक, लिखो कुछ भी लिखो, कुछ भी, अपना नाम, मेरा नाम, कुछ भी लिखो, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, इसको एंटर कर दो, रन करो, रन करो, रन करो, ठीक है, यहाँ पे लिखो प्रिंट, ब्रैकेट में एफ डॉट रीड, एफ डॉट रीड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, नहीं, रीड के बाद, रीड के बाद, आप लोग आई थिंक क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इसको रन कीजिए, ठीक है, नॉट रीडेबल, इसको अभी हमने राइट मोड में ओपन किया था एक्चुअली, अब फिर से फाइल को रीड करो, जो एफ डॉट राइट कमांड के बाद एक न्यू टैब ओपन करो, क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ऊपर जो आपका लाइन नंबर 3 है ना, एफ डॉट राइट, चलो ठीक है, यहाँ पे ओपन करो, इसको प्रिंट को डिलीट करो, ठीक है, क्लियर है, एक मिनट, हाँ, इसको डिलीट करो, यहाँ पे लिखो एफ इक्वल्स टू ओपन, ओपन ब्रैकेट में फाइल नेम, जो भी आपने फाइल बनाई है, a.txt, भैया ब्रैकेट में लिख, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं फाइल नेम, ठीक है, फिर इसको रीड मोड में ओपन करिए, कॉमा, रीड मोड में ओपन कीजिए, अच्छा बाय डिफॉल्ट रीड रहता है, ठीक है, ओके, रन कीजिए, रन, ठीक है, फिर से रीड, अब इसको करो प्रिंट एफ डॉट रीड, हाँ कीजिए, ठीक है, ये आ गया, सो दिस इज सिंपल राइटिंग इन द फाइल, रीडिंग फ्रॉम द फाइल, तो अब मुझे आई थिंक वो डिस्कस नहीं करना था जो यूनिकोड था ना, क्योंकि दोनों के में सेम है, ठीक है, सो आई कैन स्किप दिस थिंग्स, ठीक है, सो ओके, सो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, इफ यू वांट टू रीड आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, सो कुणाल यू कैन स्टॉप शेयरिंग, okay, so this is visible, ठीक है, Yes, sir. so Yes, sir. हाँ ठीक है, so I was showing this thing actually, encoding equals to, but it is not required I think, ठीक है, so अगर आप इसको भी यूज करेंगे then it will, कुणाल आप ये कमांड यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम में, ये वो फाइल नेम थी बस, उसमें आगे ये यूज किए, encoding equals to this, फिर से उसको फिर ओपन कीजिए, शेयर कीजिए अपनी स्क्रीन, एक सेकंड सर। मैं मैसेज पे लिख देता हूँ ये, इसमें रीड की जगह राइट कर देना, ओके ओके, मैं मैसेज पे लिखता हूँ, और फाइल नेम जो आपकी थी वही फाइल नेम लिखना है आपको, जो भी थी a.txt, मैंने मैसेज पे किया है, इनकोडिंग इक्वल्स टू, ठीक है, ओके, वो न्यू न्यू नाम लिख दीजिए, कोई नया नाम दे दीजिए, हे वन कर दीजिए, हे वन, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, कीजिए, क्या है, नो सच, नहीं उसको डब्लू कर दो, मॉड को आर की जगह डब्लू कर दो उसे, आप कीजिए, फिर वो राइट कमांड का यूज करके उसमें कुछ लिखिए, कॉपी पेस्ट कर लो, एफ डॉट राइट वाला जो है ना,
मैं सिर्फ वी आर जस्ट चेकिंग कि जो इनकोडिंग है ना UTF-8, तो दैट इज सिमिलर कि अगर आपके सिस्टम में डिफरेंट, फिर आप कहेंगे कि सर आपने कुछ और पढ़ाया, कुछ और है। ठीक है, इसको फिर से रीड करो फाइल को, वही f.read से रीड कीजिए। नहीं नहीं, पहले रीड करना पड़ेगा ना, तब आप उसको प्रिंट कर पाएंगे। पहले रीड करना पड़ेगा। f इक्वल्स टू ओपन, रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा आपको, अभी राइट मोड में ओपन है ना। यस, f इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट फाइल नेम a1.txt। ठीक है, बस एंटर कर दीजिए। अब रीड कीजिए f.read। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज। नहीं नहीं, अभी इन्वर्टेड कॉमा भी तो आएगा, सॉरी ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। ठीक, नहीं इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, ब्रैकेट अकेला आएगा। हाँ अब कीजिए। ठीक है, फिर कोई डिफरेंस नहीं, देखिए इसमें बैकस्लैश n आ गया ना। हाँ सर, स्पेस नहीं हुआ, वो लिखा हुआ ही आ गया डायरेक्ट। हाँ, तो इसलिए मैं वो बता रहा था इनकोडिंग। अब आप क्या कीजिए, मैं बताता हूँ, यही मैं बस चेक करना चाहता था। आप इसमें CP1252 कर दीजिए, वो क्या सर? UFT8 की जगह CP1252 CP1252। हाँ हाँ, 52 और कीजिए। 1252 नहीं, एक 5 हटा दो, 2 5 हो गए। ओके, हाँ ठीक है, अब रन कीजिए, जैसे रन इट। ओके, फिर से रन करो, फिर से पूरा। अभी भी आ रहा है ना बैकस्लैश n? हाँ सर, अभी भी यार। तो फिर आपको क्या करना है, इनकोडिंग वाला पार्ट आपको स्किप करना है। ठीक है, ऐसा करो, नहीं नहीं, एक मिनट। आप यहाँ पे प्रिंट का यूज करिए, प्रिंट ब्रैकेट में f.read, प्रिंट ब्रैकेट f.read। नहीं नहीं, इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, इन्वर्टेड कॉमा होगा तो पूरा स्ट्रिंग समझ लेगा। f.read, और रीड के बाद ब्रैकेट आएगा, रीड के बाद ब्रैकेट आएगा। यस, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एक ब्रैकेट और। अच्छा, पहले रीड कर चुके थे, अच्छा ऐसे फिर से इसको ओपन करो, जो लाइन नंबर 14 पर है ना, उसको फिर से रन करो। ठीक है, आप लोग नोटिस करना, ठीक है, क्योंकि दिस में बी हेल्पफुल। अगर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना आपके, देन फिर से प्रिंट कमांड यूज करो, वही प्रिंट ब्रैकेट में f.read, ब्रैकेट ओपन क्लोज आएगा ना। हाँ, अब रन कीजिए। ठीक है, सही आ रहा है ना। अब आप उसको फिर से वो UTF-8 कर दीजिए, फिर से यूज कीजिए। यहाँ पे फिर से जाइए, UTF-8 -8। हाँ, फिर से रन कीजिए। ठीक है, रन करो। हाँ, इसको रन करो। नहीं आ रहा है कुछ आउट, आ रहा है ना, तो कोई डिफरेंस नहीं है फिर। ठीक है, तो फिर इसको आप स्किप कर देते हैं टॉपिक को। ठीक है, ठीक है। ओके, तो फिर जो इनकोडिंग वाला पार्ट है यू कैन स्किप। ठीक है, तो यहाँ से यू कैन स्किप ऑल द थिंग्स, स्किप स्टार्ट, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्किप एंड। ठीक है, सर आपकी Okay. स्क्रीन शो हो रही। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो मैं नोट्स अपलोड करूंगा, सो नोट्स में आपको ये बस स्किप कर देना है, यहाँ से स्किप करके ये वाला पार्ट। ठीक है, बुक्स में आप कंफ्यूज नहीं हो ना, इफ दे आर सेइंग के विंडो इट इज CP1252 और लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में इट इज UTF-8,
डोंट कंफ्यूज, उसको आप फॉरगेट, ठीक है। दिस इज एन इनकोडिंग पार्ट ओनली, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना आपका। बट नाउ द लास्ट थिंग इज वी नीड टू क्लोज द फाइल, f.close, ठीक है। उससे क्या होगा, द स्पेस विल बी फ्री। जैसे आपने फाइल को रीड किया, फाइल का साइज सपोज देयर इज 4 बाइट फाइल और 5 बाइट फाइल है, तो यू हैव रीड दैट फाइल इन अ वेरिएबल, so at last you need to close that file, so we need to write f.close, ठीक है। so f.close, just that. So it will free the space, it will free the space, nothing else. It will not do anything, it will just free the space. Do you want to see the space also? मैं इसको ubuntu में शो कर सकता हूँ, एक्चुअली मेरे पास एक कमांड है, but that is not related to your course, ठीक है। htop होता है, so using this htop I can see ये मेरी रैम है, मतलब ठीक है, बट ये आपके पर्पस का नहीं है, so you can skip this, ठीक है। बस ये याद रखिए, after doing all the things, last thing is you need to close the file. The last thing is you need to close the file, ठीक है। So this is for today's topic. Tomorrow we will discuss, ठीक है, tomorrow we will discuss from here, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए,